There you heard it from both the sides, and we tried bringing you what was being said at each of those news briefings. Both news briefings extremely important. The farmers saying, and again reiterating the fact that they believe this is a conspiracy by the central government, and they're the ones, along with the Delhi police, who sent a certain group of protesters and farmers, groups who were not part of the main group, to resort to violence. That 99% of the farmers' rally itself was completely peaceful, and this is just a conspiracy to really dent their credibility and try and bring an end to this protest. They have completely, denied any responsibility with the violence charges. Now, what is it that the Delhi police is actually saying? So, the Delhi police has started from, the conditions that were agreed upon between the two sides, and said every single condition, whether it was the route, the timing of the rally, the path that had to be followed, every single condition was actually broken and not followed by the farmers. They've now gone on to say that the farmer leaders are all responsible for this violence, and as the investigation proceeds, strict action will be taken. Let me say also, good evening to the panelists who are joining us on this conversation right now. Neeraj Kumar, former Commissioner of Delhi Police; Bhanu Pratap Singh, National President of the Bharatiya Kisan Union; Bhanu; Charu Pragya, spokesperson for the BJP; and Digambar Singh, spokesperson for the BKU, also joining us this evening. I actually want to go across to Mr. Neeraj Singh for a quick comment. Mr. Singh, this is going to be also a challenge for the police to prove, their case. When it comes to large-scale mob rioting and violence, how does one maneuver and go about it? Is that a question to me? Yes, Mr. Neeraj Kumar. Yes. You called me Neeraj Singh, that's why I was My wondering. apologies. Will you please repeat your question? I got a little... Yes, Mr. Neeraj Kumar, I was asking you that, the police here obviously says that these are the leaders who were responsible. They are the ones who promised us peaceful rally, and they are now responsible for the violence. But just how difficult will it be as you go ahead to prove the case when it comes to such large-scale mob rioting? Well, it is always difficult that after a riot or after incidents like these, to pinpoint and nail down the main accused is always a difficult task. But as we have seen in some of the incidents which took place in Delhi recently, the police successfully managed to get clinching evidence of the conspiracy, as well as the involvement of certain people in those cases. So I'm sure in this case as well, the entire conspiracy will be unraveled. The contours of the entire program, how it was planned, from where the funding came, who were the real instigators, all that will come to light, and I'm sure action will be taken against each one of them. Let me actually also bring in Charu Pragya and get a comment from her. Charu Pragya, this has now been alleged to be a conspiracy by the center, specifically saying that it's now visible everywhere that the man who actually led the violence and the putting of the flag in Red Fort is actually Deep Sidhu, who is linked to the BJP. Tanvi, first of all, he's linked to very many people, and then did these people who are blaming the center today look to verify? He's been attached to this protest since the very beginning, and since the very beginning he's being applauded for being a part of the protest. Why suddenly you're calling him a BJP aide? It does not match up, it doesn't suit up. But if you'll allow me a little extra time, I want to begin this evening by thanking Delhi police for the kind of work and the kind of patience they kept yesterday, because we know how things got out of hand, and things could have been way worse if Delhi police had not kept its equilibrium, if they had fired even a single shot, and the way they controlled everything and got things back to normal as quickly as they did, that's commendable. The problem with people is that they'll blame the police force and call them weak if they do nothing, and they'll again blame the police force and call them brutal if they do something. Yesterday's event has been shameful on every single account, and even right now, while the press conferences were on, I was hearing the farm leaders speak. They don't understand what they have done to this country. They themselves
admitted the police didn't fire a single shot. Yet they don't want to take responsibility for the way those tractors were running amok, the way the videos that came up for us to see. The tractors were trying to run over people, police personnel, civilians. They were trying to turn over DTTC buses. So the way this peaceful protest turned unpeaceful is actually not a coincidence, because who turns up for a peaceful protest with swords? Who turns up for a peaceful protest with this kind of weaponry in hand? They had a time schedule which was pre-decided with the police. They had a route that was pre-decided with the police. They flouted every single thing because this was never meant to be a peaceful protest. Well, swords are actually carried traditionally, religiously by a specific sect of Sikhs, and I'm sure you know that. Just like the lathis are very much part of the culture of a large part of Uttar Pradesh and Haryana farmers, and even in Punjab. But let me actually ask Mr. Bhanu Pratap Singh, National President of the Bharatiya Kisan Union. Bhanu Pratap ji, अब क्या है इरादा? कुछ छोटे ग्रुप्स तो वापस ऑलरेडी घर जा चुके हैं टेंट निकाल के अपने. क्या जो कल हुआ उससे आपका ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो गया, पूरी क्रेडिबिलिटी चली गई? ऐसा है. हेलो जी, आवाज आ रही है मुझे. आ रही है? हाँ जी, बोलिए. हाँ, आवाज आ रही है. भानु प्रताप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि जो आप सब जो लीडर लोग हैं, आज आप अपना क्रेडिबिलिटी खो गए? कि जो कल जो वायलेंस हुआ जिसमें दिखा कि सारी शर्तें जो दिल्ली पुलिस ने रखी थी वो सब शर्तें टूट गई. ऐसा है, जो कल हुआ था, जिन लोगों ने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया है, भानु प्रताप सिंह उसका विरोध करता है. जिन लोगों ने पुलिस पे हमला किया था, लाठी, बल्लम, तमंचा, तलवारें लेकर, भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका विरोध करता है. जो उद्दंडता कर रहे थे, लोकतंत्र में भारत के संविधान के मुताबिक हमको अधिकार है शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन करके अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का. लेकिन इस तरह की जो उद्दंडता हुई है, उसने सारे देश के किसान संगठनों को बदनाम कर डाला है. इसलिए आज मैंने चिल्ला बॉर्डर से हमारा जो संगठन था भारतीय किसान भानु, उसको हटा लिया है. और हमारी मांग है, जिन लोगों ने देश के साथ, हमारे तिरंगे के साथ गद्दारी की है और उद्दंडता की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. और हम किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान भानु का संगठन ही खूब सक्षम है. और अपना वार्तालाप के माध्यम से, शांतिपूर्वक धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान भानु प्रताप सिंह जी, लेकिन वो हुआ नहीं. अब आप कह दें कि लाल किले पे तो दीप सिद्धू और उसके लोग थे, लेकिन ITO पे क्या हुआ, मुकरबा चौक पे क्या हुआ, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे क्या हुआ? एक जगह तो नहीं हुआ दंगा, बहुत सारी जगह पे दंगे हुए. सब कुछ तो दूसरों पे हम नहीं डाल सकते. जो सारे किसान नेता हैं आप जैसे, उनको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. अरे तो वो जो जैसे जिन किसान नेताओं ने ये किया है, वो किसान नेताओं की नीयत सही नहीं थी. वो अपने फायदे के लिए किसानों को बेवकूफ बनाते हैं और अपना चमकाने के लिए यो दंगे करवा रहे थे, किसानों को मरवा रहे थे, अपना नाम कमाने के लिए. पुलिस पे हमला बुलवा रहे थे, पुलिस उन पे हमला बोलती. वो तो पुलिस की थोड़ा संयम पुलिस ने बरता है, नहीं तो हजारों किसानों के बेटे और हजारों किसान मारे जाते, उनका नाम चमक जाता. ऐसे किसान नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. तो मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे ये पूछती हूँ भानु प्रताप सिंह, SS पन्नू
दर्शनपाल सिंह, भुट्टा सिंह, राकेश टिकैत और उनके लोग, क्या आप मानते हैं कि ये लोग हैं रिस्पॉन्सिबल दंगे के लिए? ऐसा है, मेरी सुनिएगा, मेरी उम्र है 70 साल जी, और ब्रज के बिरक संत पूजनीय रमेश बाबा मेरे संरक्षक हैं, और मैं किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की और देश की और ब्रज की, गंगा की, यमुना की सन 11, 13, 15 और अब उनके लिए लड़ाई लड़ता रहता हूं और समस्या को समाधान करने के लिए काम करता रहता हूं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता हूं। मैं इनको, जो नेता आप बोल रही हैं, मैं किसी को नहीं जानता कि ये क्या है और ये कौन है और ये कैसे हैं और इनका चरित्र क्या है, मैं नहीं जानता इनके बारे में। पर आप 3 महीने से उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं। गाजीपुर गया, न मैं टिकरी गया, न मैं सिंधु, किनके साथ मैं काय कर रहा हूं उनके साथ? मैं तो अलग था चिल्ला बॉर्डर पे, मैं तो मैं इनकी मीटिंगों में भी शामिल नहीं हुआ कभी। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से अपनी मांग थी मेरी, किसान आयोग का गठन करो, किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, वो कर्जा प्रधानमंत्री जी माफ कर दो, और जो किसान दुर्घटना में मर गया है या मरता है उसको 1 करोड़ मुआवजा दो, जो पुलिस का अधिकारी या सिपाही दुर्घटना में कहीं मार देते हैं, डकैत वगैरह, जैसे कानपुर में मार दिए थे 8, उनको 2-2 करोड़ रुपया उनकी पत्नियों को दो, और सेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, यदि इनको मार दिया जाए तो 5 करोड़ दो। ये जो प्रेस वाले हमारे मीडिया के बंधु होते हैं, ये भी कहीं फंस जाते हैं भीड़ भाड़ में, और इनको भी मार दिया जाता है। तो उनके परिवार वालों को, उनके यदि जेंट्स मारा जाए तो उनकी पत्नी को, यदि पत्नी मारी जाए तो उनके घर वालों को, बच्चों को 4 करोड़ रुपया दे केंद्र सरकार। ये हमारी मांगे थी, इनके लिए हम तो आए थे चिल्ला बॉर्डर पे, हम किसी और मोर्चा के साथ नहीं थे। ठीक है, मैं तो अकेले सक्षम है भारतीय किसान भानु लड़ाई लड़ने के लिए। जी, भारतीय किसान यूनियन के जो भानु सेगमेंट है, जिनको आप लीड करते हैं, उन्होंने अब तो बिल्कुल भी अपने आप को इससे अलग कर दिया, लेकिन दिगंबर सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। दिगंबर सिंह, जब वादे किए किसान नेताओं ने कि हम पीसफुल रैली करेंगे और हजारों के तादाद में जाएंगे, तो आपको नहीं लगता वहीं ये डिसीजन में प्रॉब्लम थी? कैसे आपने सोच लिया कि आप सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? आज आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। हमारा शांतिपूर्वक पीसफुली आंदोलन था। जो गलतियां रही कोऑर्डिनेशन की, जो दिल्ली पुलिस की गलतियां रही, जो सरकारी तंत्र इस आंदोलन के अंदर घुसा, सरकार चाहती थी पहले दिन से आंदोलन को बदनाम करना, राजनीतिक दल चाहते थे, और जैसे अभी ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी बोल रहे थे, ये भारतीय किसान यूनियन से ही निकाले गए व्यक्ति हैं, और ये इस आंदोलन से पहली बार नहीं भागे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये इस आंदोलन को छोड़ के एक बार पहले भी भाग चुके हैं। ये सरकार जो ये कह रहा है भारतीय, सुने, सुन, ये जो कह रहा है भारतीय किसानों से निकाले हुए हैं, न भारतीय किसानों ने निकाले, न भारतीय सत्ता ने निकाले, तू होगा निकालने वाला। और किसानों की बात करने का दम भरते हो, ऐसा है। सुन, का काम कर रहे हो। सुन, तेरी किसान यूनियन का जन्म भी नहीं था। 84 से नेता हूँ, 84 से। नेताओं को आपको बोले क्या बोलने तेरे झूठा लफंगों को क्या बोलने दूं? अरे झूठे बदतमीजों को क्या बोलने दूं जो कह रहा है किसान इनसे निकाले हुए। ठीक है, एक मिनट मैं ये बोल दूं अपने हमारे सारे किसान नेताओं को और अलग अलग संघ के जो हैं, मैं ये बोल दूं, एक मिनट भानु प्रताप सिंह जी, ये सुन लीजिए, किसान और किसान आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। यही चाहते हैं जो लोग नहीं आपको हेल्प करना चाहते कि आप आपस में लड़ाई करने लगे। आज सवाल ये है कि कल जो हुआ उसके बाद अब किसान लीडर्स की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? भानु प्रताप जी शांत हो जाइए, भानु प्रताप सिंह शांत हो जाइए।
यहाँ शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, इतना उत्तेजित मत होइए। कैसे कहा कि किसान इनसे निकाले हुए हैं? आपका खुद का है ग्रुप संगठन, आपका खुद का है, ये सबको पता है। निकाले हुए हैं किसान। ना दिगंबर सिंह, मेरे आप सवाल का जवाब दीजिए। आज आप दूसरों पे उंगलियां मत उठाइए, ना वो भानु प्रताप पे ना सरकार पे। आप मुझे ये बताएं, आपने जब जाके और आपके नेताओं ने दिल्ली पुलिस को बोला कि हम सबसे आगे होंगे रैली में, तो कहां गए सारे नेता? तो क्यों नहीं दिखे? जब आईटीओ में दंगा हो रहा था, जब लाल किले में दंगा हो रहा था, जब तोड़ के बैरिकेड मुकरबा चौक से निकले आगे, जब गाजीपुर में हल्ला हो रहा था, तो कहां थे सारे नेता? गाजीपुर बॉर्डर पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। गाजीपुर बॉर्डर से शांतिपूर्वक किसानों का मार्च निकला। उसके बाद जब अक्षरधाम पे पहुंचने के बाद, अक्षरधाम से जो रोड थी जहाँ से घूमना था, वहाँ घूमने वाली रोड को पुलिस के द्वारा बंद किया गया था बैरिकेडिंग लगा के। राकेश टिकैत जी की वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। राकेश टिकैत जी बार बार पुलिस के अधिकारियों को कह रहे हैं उस वीडियो में कि भाई आप इधर से रास्ता क्यों नहीं दे रहे हो घूमने का। जबरन दिल्ली की तरफ रास्ता दिया गया और उनको कुछ लोग प्रिप्लान भड़का के, कुछ लोगों को जिनको रास्तों का पता नहीं था। लाल किले हमारा कोई कार्यक्रम, हमारा कार्यक्रम गणतंत्र दिवस से शांतिपूर्वक परेड निकालने का था। हमारा कोई कार्यक्रम, कोई पर आप ये समझ रहे हैं कि आज ये ऐसा दिखाई दे रहा है पूरे देश को कि जो किसान नेता थे, जो इतने दिनों से आपके आंदोलन में सबसे आगे बैठे थे, वो सब तो दिखे नहीं। आगे आपने दूसरे लोगों को भेज दिया या वो पहुंच गए और दंगा हो गया। ये आप समझ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही लोगों की होगी, क्योंकि आपने ये प्लान बनाया और आपने दिल्ली पुलिस को बोला कि हमें अंदर जाने दें। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम ये जिम्मेदारी समझ रहे हैं खूब अच्छी तरह से। जो 2500 वॉलंटियर्स की लिस्ट दिल्ली पुलिस को हमारे द्वारा दी गई, हमने कहा कि जहां जहां आपने अपने जोन बनाए हैं, उन जोनों के पास आपके साथ आपके अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए संगठन के वॉलंटियर्स रहेंगे। कोई कोऑर्डिनेशन पुलिस के द्वारा नहीं बनाया गया। हमने कहा कि जहां रास्ता हो उस रास्ते को क्लियर रखिएगा, जिससे घूम के आना, जो दूसरे रास्तों को बंद रखिएगा। जिस रास्तों से किसान यात्रा जानी थी, किसान परेड होनी थी, उन रास्तों को बैरिकेडिंग लगा के बंद किया गया और दूसरे रास्तों को खुला छोड़ दिया गया। इसका क्या मतलब था? ये चीजें हमारी समझ नहीं आ रही है। हम सारी हर चीज की गारंटी और जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, हम थे। तो मैं एक सवाल, जो इसके पहले जो फार्मर नेताओं की ब्रीफिंग हुई थी और जब दिल्ली पुलिस भी बात कर रही थी और किसान नेता भी कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात उठाई और उनका कहना ये है चारू प्रज्ञा कि जो बैरिकेड थे वो ऐसी जगह लगाए गए, जैसे दिगंबर अभी कह रहे कि जिस रूट पे जाना था वहां पे बैरिकेड था, कि पुलिस ने उनको दूसरी तरफ धकेला और पुलिस ने ही किसानों को लाल किले की तरह धकेला, कि पुलिस तो कोई थी भी नहीं प्रेजेंट लाल किले पे जब वो वहां पहली बार पहुंचे। Tanvi, see, all this is just leaving a very bad taste in the mouths of all the farmers in the country. This was supposed to be a farmer protest. Which farmer wants to be associated with people like these? They call themselves leaders. Leaders are supposed to lead from the front. When they were needed, they were the first ones to run away. When did they turn up? When it was time to give bites to the media all over again. That's it. This is just some people trying to shine themselves. There are just some people who are funding this. They are trying to make their own motive work in a situation like this. They are trying to show the country down, and silly people are falling for it. That's the saddest thing. You're Indians, you're looking out for good of your people, you're falling for it. What have you done to your own country? You're the ones who burnt it up. Another thing is, the barricades were in place. If the leaders were in place, if there was somebody responsible, they could have had a word with people. Who gave them the authority to drive through these barricades? Like I said, there was that horrifying video again of a tractor turning over because that person tried to go through the barricade driving a tractor. Who's responsible? But they claim, वो तो ये कह रहे हैं चारू प्रज्ञा कि उन्होंने एक दिन पहले ही बता दिया था पुलिस को। जो पुलिस ने आज बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, the police has said it today that they knew that on 25th the stage had been hijacked, that there were other elements who had taken over the movement, anti-social elements who had taken over the movement. They did not want to follow the route. The farmers have been saying this since yesterday. They have even gone ahead and said it on our channel that we informed the Delhi police about it, but no action was taken. So you knew something was going to go wrong and you allowed to go it wrong.
Agreed, agreed. But you know, the problem over here is that even if the Delhi police had withdrawn permission, do you think that would have helped? It would have caused a riot of people standing up to say this government is undemocratic. This government is fascist. That is what would have happened. These people would not have fallen in line and tried to cooperate with the authorities. They are still not cooperating with the authorities. They are still planning what more further they can do to damage the image of farmers, damage the image of India the world over. I suggest they should all take 2 steps back, think about what they have done, think about people who have funded them, people who they've taken money from, and they have allowed this to happen. At the end of the day, they're pointing fingers at each other, but are they not equally responsible? That's the question we are asking them. Okay, let me take this point across to Neeraj Kumar as well. Mr. Neeraj Kumar, the allegation now repeatedly is that the police was complicit, that the Red Fort police post was pretty much vacant. There was hardly any resistance when the protesters, these guys landed at the Red Fort, and even before that, the roads that were supposed to be followed were blocked, forcing some amount of tension to, you know, to emerge in those locations. These suggestions, Tanvi, are laughable. They are preposterous. Will the police direct the protesters to go to Lal Killa and beat up the police itself, to throw them into the moat, to injure them in 10s and 20s? This is all nonsense. This is, absolutely ridiculous. You can make any conspiracy theory that it was the police which directed us to the Red Fort, it was the police which directed us to the ITO, and then these people attacked the police themselves. These kind of theories, they should not even be discussed because they are so laughable and so absurd. So, I don't think that we should even waste a single minute over these issues. So let me ask you this, because yesterday as well, there were many of these leaders who claimed that we had informed the Delhi police, since we had been in constant conversation with the Delhi police, we had informed them that there are these antisocial elements who are refusing to follow the path, who are already beginning to create trouble, and we don't want to have anything to do with them. But at that late hour, just a few hours before the rally and the Republic Day parade is going to start, could the Delhi police have done anything about it? No. The short answer is no. Because if you are going to stop them at the border, at the places where they were camping, and not allowed them in, there would have been violence right then. As Ms. Charu Pragya pointed out, it was at that very point that the police would have been forced to open fire. And one shot fired by the police and one farmer dying would have turned the tables entirely in this entire situation. Therefore, the police only waited and bided for time to allow them to take the rally out, allow them to follow the routes that had been already agreed upon. After all, responsible leaders with whom the police had been in dialogue for a considerable period of time had given it in writing. At some stage, you have to trust the other person. On the one side, it is said that the police never talks to the people. Here is a situation where there have been protracted negotiations with the farm leaders. They come to a certain conclusion, they arrive at certain consensus, and then every bit of it is violated. And well, Mr. Neeraj Kumar, my apologies, but I believe we've also got the BJP now holding a news briefing on the same issue. We're just going to listen in for a couple of minutes to see what they have to say. कि वो चिता उकसाते हैं और दूसरे दिन से सड़क पर आंदोलन शुरू होता है। वैसा ही ये भी आंदोलन है। कांग्रेस की सरकार है वहां, जानबूझकर किसानों को उकसाया। कल के ट्वीट भी प्रमाण है। कल यूथ कांग्रेस के और बाकी कांग्रेस के संबंधित संस्थाओं के ट्वीट्स, उदाहरण के लिए मैं बताऊं,
एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ, तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। अभी तो पुलिस ने कहा है 400 लोग जख्मी हुए। अनेक लोग हॉस्पिटल में है और अनेक पुलिस आईसीयू में भी है। और ये कह रहे हैं कि अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश। यह अहिंसक मार्च नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसको अहिंसक बता रही है। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है, युवा कांग्रेस मजबूती से ट्रैक्टर रैली के साथ खड़ी है। और ट्रैक्टर कैसे? बस को धड़क देंगे, बैरिकेड को धड़क देंगे, पुलिस जीप को सामने से टक्कर मारेंगे। और तो और कांग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सीडेंट हुआ वहां कल, और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा, क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था। नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। और जब पूरे देश से निंदा के स्वर उठने लगे, तब जाके राहुल जी का बयान आया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, शांति की अपील करता हूं। यह पश्चात बुद्धि है। कांग्रेस हताश है, निराश है, चुनाव में हार रहे हैं। कम्युनिस्टों की भी वही हालत है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। All right, so that's the BJP responding to the Congress party that earlier in the evening held a news briefing, again blaming the government for the violence that unfolded yesterday at the on the occasion of Republic Day when the farmers' tractors rally was taking place. I want to go back to our panelists and भानु प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये, अब आपके संगठन के लिए, आपके जो यूनियन के लिए अब आगे क्या प्लान है प्रोटेस्ट के लिए? ऐसा है, इन जो देशद्रोही बन गए हैं उन संगठनों के साथ तो कभी हम बात नहीं करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन भानु, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, एक अभी कह रहा था ये तो निकाले हुए हैं, तुम्हारे दादा में भी दम नहीं थी हमें निकालने की। देश का नंबर 1 ईमानदार लीडर हूं किसानों का, और जो बेईमानी करी है इन्होंने इसलिए उनको छोड़ा और अलग संगठन बनाया भारतीय किसान भानु, और लड़ाई लड़ रहा हूं ईमानदारी से। और अब भी किसानों की लड़ाई लड़ने में भारतीय किसान भानु अकेला पूरे देश में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से अपनी बात कहता हूं ईमानदारी से, और सच्ची बात होती है वो उसमें जीत होती है। क्यों? कि सत्यमेव जयते, झूठ हारता है और सत्य जीतता है। अपने नाम के लिए किसानों को मरवाना, पुलिस पे हमला बुलवाना, ये ऐसे कुकृत्य करने वालों को चाहे कितनी बड़ी ताकत हो, दंड मिलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं जो पुलिस कह रही है और सरकार कह रही है वो सही है कि ये किसानों ने प्लान करके किया है? तो आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस और सरकार सही कह रही है कि जो दूसरे बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी पे थे, उन्होंने ये प्लान करके ये दंगा किया?
अरे जिस बॉर्डर पे हो और जिसने किया हो, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, जिसने गलत किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए। केवल मेरा कहना यह है, मैं और क्या कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जिसने गलत किया है, केवल किसानों की आड़ में गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। Okay, well, let me also go across to दिगंबर सिंह and दिगंबर सिंह, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये पूरा दिल्ली पुलिस का षड्यंत्र था। क्या जितनी आसानी से आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसके एविडेंस क्या है आपके पास? क्योंकि मैं एक वीडियो हमने जो कर चला, एक मिनट, मैं दिगंबर सिंह से ये सवाल पूछ रही हूँ कि हमने जो देखा कल, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो इंजर हुए, 100 लोग उनके इंजर हुए, उनको चोट लगी, उनका सर फटा, किसानों का नहीं फटा। देखिए हॉस्पिटल में पूरा का पूरा वार्ड दिल्ली पुलिस के जवानों से भरा हुआ है, और एक वीडियो है जिसमें हम सुन सकते हैं कि उनका जो सीनियर अफसर है वहां लोकेशन पे, वो कैसे अपने जवानों को बोल रहा है कि अब किसान आएंगे और जय जवान जय किसान, हमें पूरे सहूलियत से और ठंडे दिमाग से इस चीज को हैंडल करना है, वो जो भी बोले हमको उनसे शांति से बात करनी है। आपने देखा है वो वीडियो दिगंबर सिंह? ऐसा है। हेलो, I don't know if दिगंबर सिंह can hear us. Can we just try and patch that? भानु प्रताप, मैं आपसे नहीं दिगंबर सिंह से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। उसके पहले एक्चुअली वीडियो चला ही लेते, एक बार पूरा देश भी देख ले कि ये एक जगह पे क्या बताया गया पुलिस के जवानों को जब किसान की ट्रैक्टर रैली आ रही थी सामने से। आप जवाब सुन लीजिए, मैं जवाब दूं? नहीं, एक मिनट वीडियो देख लीजिए पहले। शांति से इनको समझाओ, वरना ये हम लोगों के ऊपर से जाएंगे, मानते हो? जय जवान जय किसान। इनको ये जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे हैं, यहाँ पे किसान भी ये करे हुए हैं जिस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे I can see the amount of concern even on that officer's face, that they are going to come, but we have to maintain our calm, or they're going to go over us. और हमें शांति से उनको समझाना चाहिए। दिगंबर सिंह जी, देखिए जो जवान है, जो पुलिसकर्मी है, वो भी किसान का ही बेटा है। किसान के किसी व्यापारी का बेटा, कभी किसी अमीर का बेटा पुलिस की नौकरी करने नहीं जाता, सेना में भर्ती नहीं होता कोई। ये सारे बच्चे किसान के बच्चे हैं। जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी आज इस देश में नहीं है, लेकिन जय जवान और जय किसान का, किसान और जवान का जो साथ है, सुनिए बात, आप पूरी जवाब सुन लीजिए। किसान और जवान का साथ, किसान और जवान ही, अगर जवान सीमाओं पे इस देश की रक्षा करता है तो किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है, अन्न पैदा करके। कभी भी किसान और जवान अलग नहीं हो सकते। लेकिन इस देश की राजनीति ने और हमारी गरीबी के कारण, हमारी भुखमरी के कारण, हमारी बात को न सुनने के कारण यहाँ आंदोलन चल रहा है। जवानों को उसी सम्मान के साथ में जवान लगातार लंगर चखते हैं, आंदोलन में हमारे साथ बैठते हैं। सारे जो ड्यूटियां हैं, सारे लोग हमारे साथ रहते हैं। ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए और जांच में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहले भी पकड़ के दिए गए इस तरह के लोग जो गलत एलिमेंट आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे थे। इस देश के अंदर लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया गया है, और ये लोकतंत्र को जो शर्मसार करने का काम किया गया है, तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, पर किसने किया उसका जवाब चाहिए हमें। किसने किया? उन लोगों ने जिन्होंने वादे किए थे कि वो एक पीसफुल रैली करेंगे, सबको लेके साथ में चलेंगे, आगे से लीड करेंगे, और फिर कंट्रोल नहीं कर पाए और मान भी नहीं रहे कि वो अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए।
जिन्होंने पीसफुली आंदोलन के लिए कहा, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इस देश के लाल किले को 25,000 करोड़ रुपए में डालमिया को रख दिया गया सुरक्षा के लिए। क्या उन पूंजीपतियों की जिनकी ड्यूटी लगाई गई वहां, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। आपने मुझे मेरी बात खत्म ही नहीं करने दी। मैं तो बोल ही रही हूँ कि ये दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी है। सबसे अच्छी पुलिस फोर्स है हमारी। किसान चले गए, सैकड़ों किसान शहीद हो गया। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब उत्तेजित होने का फायदा नहीं, अब तो हो गया जो होना था कल। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। आई एम रियली सॉरी चारुप्रज्ञा, बट आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। मे बी अनदर डे। इट्स वेरी क्लियर। और अगर दिगंबर सिंह मुझे खत्म करने देते बात, तो मैं यही बोल रही थी कि उन किसान नेताओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दिल्ली पुलिस की भी है। दिल्ली पुलिस जो हमारे देश की एक टॉप फोर्स मानी जाती है, जो हर एक चीज में बहुत अच्छे से ट्रेंड है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो, रायट्स हो या डेली क्राइम हो। Delhi police also has to think about it and tell us or respond to what the farmers are saying. But you heard from the former Delhi Police Commissioner, Mr. Neeraj Kumar, saying that the allegations being made from the farmers are laughable about the police being complicit in this. I don't know if we will ever find out the truth. But both sides tonight need to introspect. And of course, there is still a very big question mark, on the protests being held by the farmers. Can they still sit at the same table and the same high moral ground demand complete repealment of laws? Or have they lost the higher moral ground that these farm netas held on for so long? That's the big question. Thank you so much for joining us.